My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on algebra. And before starting the session, if you've already subscribed to our YouTube channel, तब तो बढ़िया है. But if you've not already subscribed to the channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram or WhatsApp channel Mathological. You can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session: if f of x is equal to ax square plus bx plus c, with a being positive, the leading coefficient is positive, and this has integral roots p and q such that mod of p is less than 3 and mod of q is between 3 and 6. Then for how many distinct pairs p and q will f of 0 be non-negative? कितने केसेस में f of 0 non-negative होगा? तो बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. सो इफ देयर इज a इक्वेशन ax square plus bx plus c and that is equal to 0, in such a case, to find out the nature of the roots, we check discriminant of the equation, which is equal to b square minus 4ac. The discriminant of the equation, this can either be less than 0 or can be equal to 0 or can be greater than 0. If discriminant is negative, in such a case, the equation will be having two imaginary roots. If discriminant is equal to 0, then roots will be equal roots. Okay, equal roots and real roots. Equal and real roots. Important condition ये है कि a, b and c, the coefficients should all be real to start with. Okay, these should be real. So if they are real, so for equal roots, the roots will be equal roots and real roots. Equal real roots होंगे. If discriminant is greater than 0, then there will be two distinct real roots. जब पॉजिटिव भी है डिस्क्रिमिनेंट, तो वहां पे भी हमारे पास दो केसेस बनते हैं कि ईदर डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर or not a perfect square. So if discriminant is a perfect square, then there will be two distinct rational roots. ये जरूर है कि ए बी सी दीज शुड बी रियल एज दीज शुड बी रियल एंड रैशनल बोथ. रियल तो होने चाहिए, रैशनल भी होने चाहिए. अगर ए बी सी रैशनल होंगे तो फिर रूट्स रैशनल नहीं मिलेंगे. तो रूट्स रैशनल तब होंगे डी के परफेक्ट स्क्वायर होने पे जबकि ए बी सी आर ऑल्सो रैशनल, बिकॉज रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो जैसे ही हमारा डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस बिकम्स रैशनल. And if d is not a perfect square, then this will be irrational part. Okay, so if this is not a perfect square, there will be two distinct irrational roots. And irrational roots are always conjugate. So if one of the roots is p plus root of q, the other root will be p minus root of q. They will always be conjugate. Okay, फटाफट से रिवाइज कर लिया हमने शॉर्ट में. अब अगर दो रूट्स हैं हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस हैज टू रूट्स and roots are alpha and beta. Then sum of these roots alpha plus beta, this is equal to minus b by a, and product of roots alpha into beta, this is equal to c by a, and difference of the roots alpha और beta का difference that will be equal to, okay, alpha plus beta क्या है, this will be basically square root of alpha plus beta whole squared minus 4 alpha beta, square root of b square upon a square minus 4 c by a. So this becomes square root of b square minus 4ac upon a square, which is square root of discriminant divided by mod of a. That will be difference of alpha and beta. Okay. So in this question हमारा कह रहा है कि f of 0 should be non-negative. Non-negative का मतलब हुआ या तो it can be equal to 0 or it can be positive, but it should not be negative. Should not be less than 0. fx given है हमें और a is greater than 0 यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, और दो रूट्स के लिए रेंज भी गिवन है हमें, एंड रूट्स आर इंटीग्रल, इंटीजर रूट्स हैं हमारे पास. f of 0 will be equal to, put x equal to 0, f of 0 will be equal to c a into 0 square plus b into 0 plus c. This is equal to c and this is non-negative. This can be greater than equal to 0. और जैसा देख रहे होगे इस केस में हमारा अल्फा इंटू बीटा इज कमिंग आउट टू बी सी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए.
If alpha and beta are the roots of this function, so alpha into beta is equal to c upon a. Now since a is positive, c can be greater than or equal to 0. So c by a, in such a case, this will be alpha into beta, this will be greater than or equal to 0. Either it will be equal to 0 or it will be greater than 0. यही दो केसेस मिलेंगे, ठीक है. तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव कब होगा? दो रूट्स हमें गिवन है, एक है p, अदर वन इज q. तो इधर both roots are equal to 0, ये हो सकता है. और वन रूट इज 0, अदर रूट कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है. या थर्ड केस विल बी इफ वन रूट इज पॉजिटिव द अदर रूट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. नाउ सिंस मॉड ऑफ p इज लेस देन 3, तो p क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? p कैन बी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और 0. और मॉड ऑफ q इज बिटवीन 3 एंड 6, तो q कैन टेक वैल्यूज प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 6. तो p और q साथ में तो 0 नहीं हो सकते, बोथ 0. दिस फर्स्ट कंडीशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, not possible. But second condition, if p is equal to 0, one root is equal to 0, other root is can take any value. So if p is equal to 0, q can take any value. In this case, there will be total 8 cases. P is 0, q is plus 3, p is 0, q is minus 3, and so on. Total 8 cases. 8 cases will be there. Both roots positive. So p can take 1 or 2, these two values. 2 values for p, and q can take 4 values, so 2 into 4. Again, there will be 8 cases. And last case, when both are negative. If both are negative, p can take 2 values and q can take 4 values. Total यहाँ पे भी 8 cases ही आएंगे. 8 plus 8 plus 8, total cases will be 24. There are 24 ways, 24 pairs of p and q when f of 0 is a non-negative value. क्या ये clear है? ठीक है. अदरवाइज हम ऐसे भी इस बात को सोच सकते थे कि instead of finding out when f of 0 is a non-negative value, we could have found out कि when f of 0 is a negative value, this is less than 0. Less than 0 कब होगा? When one of the p and q is negative. एक negative हो, एक positive हो. First case will be when p is positive, q is negative. Second case will be when p is negative and q is positive. कितने cases बनेंगे? If p is positive, तो p positive कितने ways में हो सकता है? 2 ways में. And q can be negative in 4 ways, 2 into 4, 8 cases. और second में वही मामला बनेगा, 2 into 4, 8 cases. यानी कि 16 cases में f of 0 will be less than 0. और total cases कितने आने वाले हैं? p can take 5 values, q can take 8 values. So 5 into 8, total cases are 40. Out of 40, 16 cases are there when f of 0 is negative. तो remaining cases में f of 0 positive होगा. क्या ये क्लियर है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता. अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली इन पीएनसी वाला क्वेश्चन, जहाँ पे कि एलिमिनेशन कई बार आसान होता है, तो दोनों तरीके समझ में आने चाहिए. कभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे कि कम वेज होंगे एलिमिनेट करने के, और कहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेट अवे. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number 2. A shopkeeper purchased a certain number of laddus. On each day, he sold 1/4 of the stock and gave 1/3 of the remaining stock to his friend Mani to sell and donated 20 in the neighborhood temple. Whatever was left, he used the next day. At the end of the day 3, he had 10 laddus remaining after doing all of the above. To find the number of laddus he had purchased initially. This is a very conventional question. So if you've done it, very easy. If you've not done it, then pause the video and try to solve it, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करना. ठीक है. क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि सर्टेन लड्डूज परचेज किए शॉपकीपर ने. नाउ ऑन ईच डे ही सोल्ड 1/4 ऑफ द स्टॉक एंड गेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक टू हिज फ्रेंड मनी टू सेल. तो पहले उसने क्या किया? लेट अस से ही परचेज्ड x लड्डूज, ही सोल्ड 1/4 ऑफ दीज लड्डूज, यानी कि x/4 ही सोल्ड. देन रिमेनिंग जो स्टॉक बचा, तो ही गेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग. नॉट 1/3 ऑफ द टोटल, but 1/3 of the remaining. Since he has already sold 1/4, तो remaining बचा है वो भी तो वही तो 3/4 है, that is 3/4. अब इस 3/4 का भी 1/3, which will again be 1/4 of the total. 1/4 he has already sold, 1/4 of the total he has given to his friend money, and then remaining 20 he has donated. So out of total x, he has sold x/4, given x/4 to his friend money, and then donated 20 additionally. ठीक है. तो एज्यूम करना है, अगर हमें वेरिएबल मानना है तो एज्यूम क्या करेंगे? वी विल बी एज्यूमिंग स्टार्टिंग वैल्यू टू बी 4x बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 4. ठीक है. तो इफ टोटल इज 4x इनिशियली, आफ्टर सेलिंग ही हैज सोल्ड x, तो रिमेनिंग इज 3x. आउट ऑफ दिस 3x,
he is giving x to his friend money, remaining will be 2x. And out of these 2x, he is giving 20, donating 20 in the neighborhood temple, तो -20. तो remaining at the end of the day will be 2x minus 20. अब यही प्रोसेस हमारा बार बार रिपीट होगा, ठीक है. सो इफ वी स्टार्टेड विद 4x, द रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे विल बी 2x minus 20, यानी कि 4x का हाफ -20. Isn't it so? तो अब सेकंड डे भी यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा. सेकंड डे 2x minus 20 is the starting stock, and at the end of the day this will be 2x minus 20 का half minus 20. Now on the third day as well, same process. Starting stock will be 2x minus 20 by 2 minus 20, and at the end of the day क्या आएगा, 2x minus 20 by 20 is x minus 10 minus 20, तो this will be x minus 30. x minus 30 by 2 minus 20, this will be stock at the end of the day. And question is saying at the end of the day 3 he had 10 laddus remaining. Day 1 पे started with 4x, day 2 पे started with 2x minus 20, day 3 पे started with x minus 30 and ended with x minus 30 by 2 minus 20, and this value at the end is equal to 10. This will be our final equation. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो 20 plus 10 becomes equal to 30. x minus 30 by 2 is equal to 30. x minus 30 is 60. x will be equal to 90. x will be equal to 90. और अगर x हमारा 90 आ रहा है तो 4x हमारा इनिशियल वैल्यू था, 90 तो नहीं था, तो नंबर ऑफ लड्डूज इनिशियली कितने होंगे, दैट विल बी 4x यानी कि 360. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. इफ यू स्टार्ट विद 360 तो एट द एंड ऑफ द डे कितना बचेगा, 180 minus 20 160. सेकंड डे ही विल बी स्टार्टिंग विद 160 और एंड ऑफ द डे पे क्या बचेगा, 160 का हाफ यानी कि 80 minus 20 विच इज इक्वल टू 60. और थर्ड डे पे इफ यू स्टार्ट विद 60, एंड ऑफ द डे पे क्या बचेगा, 60 by 2 यानी 30 minus 20 which is equal to 10. So yes, total stock, total number of laddus that he started with will be 360. क्या ये क्लियर है? Is that part clear? ठीक है. अब ये तो हो गया हमने जब क्वेश्चन को, पूरा इक्वेशन को सॉल्व किया. पर अगर डे 3 डेज की बजाय 4 डेज होते, 5 डेज होते, तो ये क्वेश्चन उतना ही मुश्किल होता जाता. ठीक है. बेटर काम क्या होगा ऐसे केसेस में कि विल बी आइडेंटिफाइंग द आंसर, रिवर्स वे में जाएंगे. ठीक है. ऑप्शंस गिवन होते तो कई बार ऑप्शन से भी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें ये पता होता कि डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होगा फॉर श्योर. ठीक है. और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से कि आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए. तो ऑप्शन से रिवर्स ट्रैक कर सकते थे, कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेते, बट ऑप्शंस कोई गिवन नहीं थे, तो यहाँ पे एक तो मेथड ये हो गया. बट बेटर मेथड क्या होगा कि हम सबसे पहले प्रोसेस को समझ लें, टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन वन डे, और फिर उसके बाद में वही काम रिवर्स इंजन में करेंगे वैल्यू 10 से स्टार्ट करके, वैल्यू 10 से स्टार्ट करके. ओके. तो जैसे हमने फर्स्ट डे पे देखा कि इफ यू स्टार्टेड विद 4x, एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू रिमेनिंग इज 2x minus 20. ओके. सो बैक ट्रैक करना है हमको. एंड पे जो हमको वैल्यू मिलेगा एट लास्ट विल बी एडिंग 20 टू दैट वैल्यू. क्या करेंगे इफेक्टिवली, क्या होगा, एंड में अगर हमें 2x minus 20 मिला है एट द एंड ऑफ द डे, तो विल बी एडिंग 20 टू दिस एंड देन विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 2. ठीक है. पहले दिन का प्रोसेस समझ लो. 4x minus x बचा 3x, 3x का 1/3 x हो गया, 3x minus x बचा 2x, 2x minus 20 रिमेनिंग विल बी 2x minus 20 एट द एंड ऑफ द डे. अब हमें रिवर्स जाना है तो 2x minus 20 में ऐड 20 एंड देन डबल इट. ठीक है. हमें लास्ट में बताया डे 3 पे 10 लड्डूज आर रिमेनिंग. तो डे 3 के EOD एंड ऑफ डे 3 पे वी हैव 10 लड्डूज. स्टार्ट ऑफ डे 3 पे क्या वैल्यू रहा होगा, दैट विल बी 10 plus 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 60. नाउ एंड ऑफ डे 2 पे वैल्यू विल बी 60. तो स्टार्ट ऑफ डे 2 पे क्या रहा होगा, दैट विल बी 60 plus 2, सॉरी 60 plus 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी 160. नाउ एंड ऑफ डे 1 पे वैल्यू वुड हैव बीन 160. तो स्टार्ट ऑफ डे 1 पे क्या रहा होगा, दैट विल बी 160 plus 20 multiplied by 2 यानी कि 360. So our answer in this case will be 360. Okay. Clear? Next question पे चलते हैं. Next question is, for how many integer values of k the equation mod of x square minus 5x plus 4 is equal to k has exactly 4 distinct roots. बढ़िया क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, सॉल्व इट. सिंपल क्वेश्चन है, बट एक बार समझ जाओगे तो सिंपल है, अदरवाइज समझ में ही नहीं आया कैसे सॉल्व करोगे इसको. For how many integer values of k the equation mod of x square minus 5x plus 4 is equal to k has exactly 4 distinct real roots. Okay, तो इक्वेशन हमारा है mod of x square minus 5x plus 4 and that is equal to k. x square minus 5x plus 4, इसके रूट्स देख लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 4.
4 by 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4, सम ऑफ रूट्स इज 5, तो रूट्स कैन बी 1 and 4. इक्वेशन बन जाएगा x minus 1 into x minus 4. This equation has two roots, x minus 1 and x minus 4. 1 and 4 are the roots. So we can write this equation as mod of x minus 1 into x minus 4. This is equal to k. Okay. Critical points है हमारे 1 and 4. When x is greater than 4, this will be positive. When x is less than 1, this will be positive. But between x 1 and 4, this will be negative. So mod will be opening with a positive sign when x is greater than 4, or when x is less than equal to 1. In both these cases, mod will be opening with a positive sign, यानी कि x minus 1 into x minus 4, this will be equal to k. But if x is between 1 and 4, mod will be opening with a negative sign, यानी कि minus of x minus 1 into x minus 4, this will be equal to k. बट क्योंकि k एक अननोन है, कोई नोन वैल्यू होती तो सॉल्व कर पाते हैं हम यहाँ से, बट क्योंकि k एक अननोन है तो यहाँ से भी सॉल्व करना मुश्किल होगा. ठीक है, तो पहले एक बार समझते हैं कि मॉड्यूलस के केसेस में या फिर किसी भी केस में इन जनरल हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में ग्राफ हमारे बहुत काम आएगा. ओके, सो इफ वी हैव इक्वेशन ax² plus bx plus c and we have to draw the graph for this equation. The graph will be either upwards parabola or a downwards parabola. ठीक है, या तो अपवर्ड्स व्यू होगा या यू फेसिंग अपवर्ड्स या यू फेसिंग डाउनवर्ड्स, बट एज सच यू का शेप नहीं होता है, शेप इज पैराबोला, बट कह सकते हैं इन जनरल. ठीक है, समझने के लिए कि यू का शेप है तो अपवर्ड्स यू और डाउनवर्ड्स यू. ओके, अब ए हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, तो फिर हमारा अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, बिकॉज एज एक्स विल बी इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. अदरवाइज दिस विल बी अ डाउनवर्ड्स पैराबोला व्हेन ए इज नेगेटिव. ए इक्वल टू 0 का तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जैसे ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर x² वाला पार्ट तो हल चला ही गया, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा उस केस में. ठीक है, तो इफ ए इज पॉजिटिव तो अपवर्ड्स पैराबोला, अदरवाइज इट विल बी अ डाउनवर्ड्स पैराबोला. ओके, और फर्स्ट केस में व्हेन ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू, this is the graph. Okay, and if this is the graph, so in such a graph मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी. तो एक्स तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब भी दिस इज इंक्रीज टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब भी दिस इज इंक्रीज टुवर्ड्स प्लस प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू, एंड दैट मिनिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. Okay, and in the second case when a is less than 0, is the graph is a downwards parabola. As x is tending towards infinity, ग्राफ हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है. एंड इन सच ए केस देयर इज अ मैक्सिमा दैट एग्जिस्ट. यहाँ पे मिनिमा था, मिनिमम वैल्यू. इन दिस केस देयर इज अ मैक्सिमा दैट एग्जिस्ट, एंड दैट मैक्सिमा आल्सो एग्जिस्ट एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2. तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एट, एक्सट्रीम वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2, जो कि होता है दोनों रूट्स के बीच में. इफ देयर आर टू रियल रूट्स तो उनके बीच में होगा. इफ देयर इज एग्जैक्टली वन इक्वल रूट तो उसी रूट पे होगा, अदरवाइज अगर दो इमेजिनरी रूट है तो भी उनके बीच में ही होगा. ठीक है, तो दैट मिनिमा और मैक्सिमा ऑलवेज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. क्या ये क्लियर है? अब अगर हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स होते, there is some equation and let us say that equation has two roots, and this is our first root alpha, this is our second root beta. Okay, so x is equal to 0, this line is y is equal to 0. ये लाइन हमारा है क्या, y is equal to 0, x axis is y is equal to 0. So at y is equal to 0 there are two roots alpha and beta. ठीक है, अल्फा और बीटा कब रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के. व्हेन एट अल्फा एंड बीटा दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0. भाई अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो y व्हेन y बिकम्स इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, तो दोज वैल्यूज आर द रूट्स, यानी कि एट अल्फा एंड बीटा द इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0. दो रूट्स पॉसिबल हैं. अब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक रैंडम हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से दैट लाइन इज एज y इज इक्वल टू k, and जहां पे भी this line y is equal to k, wherever that line is intersecting our graph, those points are satisfying our line as well as the curve
the quadratic equation, isn't it so? So these are the solutions. So can you appreciate it that हम ये लाइन कहीं पर भी ड्रा करें, as long as this line is above the minimum value, this will always be intersecting at 2 points, isn't it so? अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं exactly at this point, जस्ट टच करें इसको, जस्ट टच करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है? सो दिस इज लेट अस से K1, ये K1 कहाँ पे आएगा? -b/2 है, दिस मिनिमम वैल्यू, ठीक है? सो इफ y इज इक्वल टू K1 यानी कि मिनिमम वैल्यू है हमारा, तो वहां पे देयर विल बी वन सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर विल बी टू सॉल्यूशंस, एंड एनी वैल्यू दैट इज लेस देन K1, इफ y इज लेस देन K1, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इन जनरल अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ y either there will be zero solutions, no solution, or there will be exactly one solution at the minima, or there will be two solutions for any value above that। अगर हमारा एक अपवर्ड्स पैराबोला है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा तो बात उल्टी होगी, पर वहां भी यही तीन केसेस पॉसिबल होंगे। और डाउनवर्ड्स पैराबोला, इफ y का वैल्यू इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, इन सच केस वहां पे देयर विल बी जीरो सॉल्यूशन। इफ y का वैल्यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, देन देयर विल बी वन सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर विल बी टू सॉल्यूशंस फॉर ऑल द अदर वैल्यूज। थ्री केसेस पॉसिबल, बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है देयर इज एडिशनल मॉड्यूलस, डिफरेंस इज एडिशनल मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं, दिस इज x-1 इंटू x-4 का मॉड वैल्यू। तो फर्स्ट रूट विल बी एट x इक्वल टू 1, सेकंड विल बी एट x इक्वल टू 4, and graph will be something like this, okay, and minimum will exist at the middle value between 1 and 4, तो 5/2 या 2.5 वैल्यू क्या आएगा? दैट विल 2.5 माइनस 1 इंटू 2.5 माइनस 4 यानी कि -2.25। नाउ सिंस वी आर टेकिंग मॉड्यूलस, तो ऑल द नेगेटिव वैल्यूज का हम क्या लेंगे? वी विल बी टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। So between 1 and 4 graph will be inverted, this will be the graph, and this point at x equal to 5/2, this point here, this will be 5/2, the value will be 2.25. Now if we are drawing any horizontal line for y is equal to, let us say, K1, when K1 is greater than 2.25, as long as y is greater than 2.25, there will be exactly two solutions, isn't it so? If y is equal to 2.25, this will be intersecting at 2 points and touching at 1 point. So at y is equal to 2.25, there will be three solutions. But if y is less than 2.25 but greater than 0, between 0 and 2.25, so there will be total 4 solutions. तो क्वेश्चन हमसे डिजायर कर रहा है देयर विल बी टोटल 4 सॉल्यूशंस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? देयर विल बी 4 सॉल्यूशंस व्हेन y इज बिटवीन 0 एंड 2.25, और y इक्वल टू 0 पे भी हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, 1 and 4 ओनली। So we'll be having 4 solutions when y is between 0 and 2.25, और क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है if this is equal to k, but question ये कह रहा है कि how many integer values of k? If k is between 0 and 2.25, so we'll be having 4 solutions। तो बस यही कंडीशन चाहिए हमको, तो k can be equal to 1 और k can be equal to 2, only these two answers are possible। टोटल वैल्यूज कितनी हुई? 2 वैल्यूज हुई, तो आंसर हमारा 2 होगा, और 2 वैल्यूज ऑफ k और 2 integral values of k will be having exactly 4 distinct real roots। अगर इंटीजर नहीं पूछा तो तब तो फिर इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज होती है बिटवीन 0 एंड 2.25। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो इफ k इज इक्वल टू 1 और 2, देयर विल बी 4 सॉल्यूशंस। इफ k इज इक्वल टू 0, देन देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, एंड इफ k इज ग्रेटर देन 2.25, तब भी विल बी हैविंग एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, एंड इफ k इज लेस देन 0, तब तो वहां पे फिर नो सॉल्यूशन। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Next question is, let f of x be a quadratic polynomial with 1 as the leading coefficient. It is given that the f of 1 is equal to 5 and minimum value of the function is at x equal to 2. Then how many pairs of integers a comma b satisfy this inequality fa plus fb that is less than or equal to 10? fx is a quadratic polynomial. Let us assume that fx is equal to ax square. स्मॉल a b तो हम मान रहे हैं तो कैपिटल a मान लेते हैं इसको. fx is equal to ax square plus bx प्लस सी. अच्छा, 1 इज द लीडिंग कोएफिशिएंट तो ए तो इक्वल टू 1 ही हो गया. पहले 1 कर देते हैं. एंड एडिशनली इट इज गिवन दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो मिनिमम वैल्यू इज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. But since a is equal to 1, so this will be at minus b by 2. Minus b by 2 is equal to 2. So b comes out to be equal to minus 4. The equation becomes x square minus 4x plus c. And f of 1 is equal to 5. So put x equal to 1. F of 1 will be equal to 1 square minus 4 into 1 plus c. And that is equal to 5. So c minus 3 is equal to 5. And hence c will be equal to 8. तो हमारा इक्वेशन fx हो गया फाइनली x square minus 4x plus 8. This is fx. Question is asking, how many pairs of integers a comma b satisfy the inequality f of a plus f of b and that is less than or equal to 10? This is less than or equal to 10. Okay. Achha, x square minus 4x plus 8. This can also be written as x square minus 4x plus 4 plus 4 because this part will be perfect square. Okay, we can write this as x minus 2 whole squared plus 4. अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि f of a plus f of b this should be less than or equal to 10. f of a will be equal to a minus 2 whole square plus 4. f of b will be b minus 2 whole square plus 4 and this should be less than or equal to 2. 4 plus 4 8 right hand side में जाके this will be 2 तो a minus 2 whole square plus b minus 2 whole square this will be less than or equal to 2. Now can we solve this equation? A minus 2 whole squared plus b minus 2 whole squared that should be less than or equal to 2. Now since a and b are integers and all perfect squares are always greater than or equal to 0, so a minus 2 whole square will always be greater than or equal to 0. b minus 2 whole square this will always be greater than or equal to 0. तो या तो दोनों 0 होंगे तो भी चलेगा if both are equal to 0 and since a and b are integers तो a minus 2 और b minus 2 भी तो इंटीजर ही होंगे और उनका भी परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं. तो a minus 2 whole square this can either be 0 or this can be 1 का स्क्वायर. तो this can be equal to 1 that is possible. या this can be 2 का स्क्वायर तो this can be 4. बट अगर 4 हो गया तो अपने आप में ये अकेला ही 4 हो गया और हमें चाहिए टोटल सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 2. तो सॉल्यूशन तो हमें या तो मिलेगा ये बोथ आर इक्वल टू 0 और इफ वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 एंड अदर इज इक्वल टू 1 और बोथ आर इक्वल टू 1 तो वो भी चलेगा बिकॉज सम हमारा 2 होगा और 2 होना भी पॉसिबल है. अब इसके अलावा कोई भी और केस हमारा बनता नहीं है. तो ओनली 4 केसेस आर पॉसिबल. इधर बोथ आर 0 और वन ऑफ देम आर इज 0 और बोथ आर इक्वल टू 1. ओके, फर्स्ट केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इफ a minus 2 whole square is equal to 0 यानी कि a is equal to 2 आ गया. a एंड b के क्या सॉल्यूशन मिलेंगे? बोथ आर इक्वल टू 2. 1 सॉल्यूशन मिल गया. सेकंड केस, इफ a minus 2 whole square is equal to 1, if a minus 2 whole square this is equal to 1, a minus 2 will be प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1. ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 देखिए दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. इफ a minus 2 is equal to प्लस माइनस 1 तो a या तो हमारा क्या होगा? इधर a will be 3 और a will be equal to 1. तो a या तो 1 होगा या फिर 3 होगा. b will be equal to 2. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि a minus 2 whole square will be equal to 1. बट इफ इंस्टेड गिवन होता है कि a minus 2 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 तब फिर एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड दिस a minus whole square a minus 2 whole square equal to 1 this is a quadratic equation. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 रूट्स मिलेंगे. यहाँ पे एक ही रूट मिलेगा इन केस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. दैट इज द डिफरेंस. वो हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल ऑलवेज बी गिविंग अ पॉजिटिव वैल्यू बट जब हम a minus 2 whole square equal to 1 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी गिविंग अस 2 वैल्यूज प्लस 1 एंड माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे 2 केसेस मिल गए हमको. सिमिलरली सेम कहानी बनेगी जब हमारा a इक्वल टू 0 होगा और a minus 2 whole square equal to 0 होगा यानी कि a will be equal to 2 एंड b will be 1 and 3. बट लास्ट केस में हमारे पास क्या केसेस होंगे? सिंस a minus 2 whole square को भी 1 होना है, b minus 2 whole square को भी 1 होना है तो a कैन ऑल्सो बी 1 and 3 एंड b कैन ऑल्सो बी 1 and 3. टोटल सॉल्यूशंस हो गए 1 इन फर्स्ट केस,
2 in second case, 2 in third case, and 4 in the last case. Total solutions are equal to 9. 9 will be total number of cases. So total number of pairs will be equal to 9 in this case. Is that clear? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन. आई बिलीव जो भी डिस्कस समझ में आएगा. एंड देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड आल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन तुम्हें कैसा लगा. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.